I'm an art curator and art promoter and entrepreneur as well. So I take exhibitions all over the world, and I was so passionate about art because art fascinated me so much that my inner voice always wanted to create something. So I did worldwide collaborators से curator से collaborate करके in Paris दिसंबर में. Okay. And in January पोर्चुगल में है. Yellow is a very good color, shows the brightness of sun. एक्चुअली क्यूरेटर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं एक आर्ट को बेचने के लिए. टू वेयर ब्लैक बिकॉज इट गोज विद एवरीथिंग. सो नमस्कार दोस्तों, बातें तेरी मेरी में मैं रीना फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू पॉडकास्ट लेकर. सो आज जो हमारे साथ गेस्ट है बहुत ही स्पेशल हैं एंड शी इज वेरी टैलेंटेड एंड वेरी गॉर्जियस, मिस अर्शलीन. हाय अर्शलीन. हेलो. से पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बातें तेरी मेरी में एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया. यू आर ए वेरी गुड एंटरप्रेन्योर एंड आर्ट एग्जीबिशंस तो आप थोड़ा सा डिटेल दीजिए हमारी ऑडियंस को उसके बारे में. So basically, I'm an art curator and art promoter and entrepreneur as well. So I take exhibitions all over the world, and I guide artists to exhibit their work worldwide and in the nation as well. And I give them coaching to make what style of an art which is actually acclaimed worldwide. Okay. So why choose art? So I was like, when I started this work, I was so passionate about art because art fascinated me so much that my inner voice always wanted to create something. So I did my MA and I've completed my PhD in art, and I was fascinated by M.F. Hussain, Raza and Pablo Picasso. Alright. That was the reason. So any particular art form में है आप like या all type of your multiple? See, I'm into acrylic and into watercolor and mixed media and everything which is related to Indian art and contemporary art which is acclaimed worldwide. Okay. So like जो भी आपका है इसमें as you told earlier कि you're looking to the exhibitions, right? So ना थोड़ा सा business venture के बारे में हमारी audience को guide कीजिए, like how you see what my work is to give the right guidance to all the artists, especially based out of India, who are struggling to a good artist and they want to have a good market abroad. So मेरा फोटे ये रहता है कि मैं उनको इतने अच्छे से गाइड करूं ताकि वो अपनी स्किल्स को हायर लेवल तक लेके जा सके और उन्हें वो राइट गाइडेंस इन नॉमिनल फीस एग्जीबिशन में वो पार्ट ले सकें, जिसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स करे हैं वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेटर से क्यूरेटर से कोलैबोरेट करके उनकी वहां तक आर्ट को लेके जाना. जैसे अभी मेरा अपकमिंग शो है इन अ कोलैबोरेटेड एफर्ट इन पेरिस दिसंबर में. ओके. एंड इन जनवरी पोर्चुगल में है, फरवरी में स्पेन में है. ऑलराइट. सो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी विल बी हैविंग अ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल. लाइक वी आर गिविंग ग्रांट टू 10 to 15 artists. Okay. So that they get grant from the government around 13 to 15 lakhs, and they'll be able to participate on behalf of Indian government, and all the ambassadors of different countries are with us. Very nice. Like everyone will get the opportunity from your and right. You're running some online classes, right? Yes. You're coaching. So Coaching like classes. worldwide आप जो coaching कर रहे हैं वो किस तरीके से रहता है पर्पस? Like आपको अगर audience connect करती है, process क्या रहेगा? बेसिकली मेरा ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस तो चल ही रहा है जिसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट सिखा रही हूँ. कोई एज लिमिट नहीं है, छोटा बच्चे से लेके बड़े से बड़े लोग 60 इयर्स तक भी मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैं एक्रिलिक, वाटर कलर, मिक्स मीडिया सब सिखाती हूँ. Okay. सो अब उनको कहाँ पे सीख के कहाँ पे एग्जिबिट करना है वो भी मेरी गाइडेंस रहती है. तो जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है और जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, मेरे दोनों ही फोटे हैं. दोनों को मुझे कहाँ पे किस लेवल तक लेके जाना है, आई गिव देम गाइडेंस. सो जिसमें टीचिंग भी इन्वॉल्व है. Okay. और एग्जैक्टली एस्टैब्लिशिंग देमसेल्फ एज एन आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया दोनों इज इंक्लूडेड. दोनों इंक्लूडेड हैं. सो
जो अभी आपका इंस्टीट्यूट है वो किस नाम से है बेसिकली? Arshad's Ventures. Arshad Ventures. You are on Instagram now? Yes. All right. So friends, if you want to join to Arshlin and her institute, so we'll give the all details on in the description box. So वहां से भी आप कर सकते हैं connect and she is on Instagram as well. So वहां से भी आप इनको connect कर सकते हैं. Like आपने बताया कि MF हुसैन एंड अदर ये लोग थे जिनसे आप बहुत ज्यादा लाइक प्रोत्साहित हुई एंड आप इस फील्ड में आए हैं आर्ट में. सो बेसिकली आर्ट फॉर्म, अगर आर्ट में आप नहीं होते तो आप क्या होते? तो मैं एक बात जरूर कहूंगी, बिकॉज एक स्पिरिचुअल पर्सन मैं जरूर हूँ. ओके. मुझे मेरे जो हायर सेल्फ जो इनसाइट से गाइडेंस मिलती है इनर वॉइस की, मैं वो जरूर करती हूँ. और आर्ट में जब मैं आई और मैं जब आर्ट का काम आर्टिस्ट का देखती हूँ, तो व्हाट आई कैन रिलेट that every artist has put his or her soul into their artwork. So जो उनकी अंदर आत्मा जो कह रही होती है वो लोग वो चीज बनाते हैं. एंड इट इज सो फैसिनेटिंग टू जस्ट फिगर आउट कि उन्होंने बनाया क्या है. कुछ आर्ट किसी को कहीं समझ नहीं आती है, बट डिफिकल्ट थिंग इज कि आप उनकी आत्मा को पहले जानिए, फिर उनकी आर्ट समझ में आएगी आपको. एक्चुअली हम लोग जैसे देखते भी है ना पेंटिंग्स वगैरह, लिटरली मतलब नॉर्मल पर्सन देखते हैं कि उनको क्लियरिटी नहीं होती, समझ में नहीं आता, राइट? सो अभी जस्ट आपने बोला है कि आप उसको रीड कर सकते हो आर्ट को, राइट? सो आई वुड लाइक टू टेक अ जस्ट लिटिल बिट एग्जांपल कि हमारा जो ये लोगो है ये क्या कहता है? So, इसमें आपने रीना जी एक बहुत अच्छा आपने स्पीकर बनाया हुआ है, आपने लाइक हेडफोन्स बनाया हुआ है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी सारी सुने और आपको समझे और आपको लाइक करे और आपसे बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन मिले इसमें आपके साथ पॉडकास्ट करके अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए. ओके, दैट्स नाइस. एंड कलर की अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो उसको भी आप कहीं से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? Yes, yes, why not? Yellow is a very good color and which shows the brightness of sun, and of course red I can see is always a positive color. Okay. Both the colors are very good. ऑलराइट. चलिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा रहा आज. अगर अर्शलीन के साथ हम लोग इस गॉसिप पर आए हैं तो हमें बहुत सारी चीजें हमारे लोगों के बारे में पता चल गई जो एक्चुअली में हम लोगों को नहीं पता थी. Okay. थैंक यू सो मच फॉर दिस. My pleasure. ऑलराइट. सो अर्शलीन, अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, आप कितना एक्सपीरियंस कितने इयर्स का हो गया आपका? It's more than 14 years. 14 इयर्स. सो 14 इयर्स की जो जर्नी है आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगी? लाइक कौन कौन से स्ट्रगल फेसेस आपके आए थे? बिकॉज आप इस लेवल पर पहुंचे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे आपके इस आए होंगे हर्डल्स वगैरह, तो आपने उन चीजों को किस तरीके से हैंडल करा, वो थोड़ा सा आप पॉजिटिव वे में बताएंगे? स्ट्रगल्स हर एक की लाइफ में होते हैं, मैं तो ये कहूंगी, बट एवरी स्ट्रगल इन माय लाइफ आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड और एल्स आई कैन से दैट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो एज अ पर्सन. उस चैलेंज को मैंने अपनी विजडम में कन्वर्ट किया. I meditated, I inclined myself spiritually, and I found the more better way of doing things, you know. Challenge was taken as an opportunity to grow. And I would rather say everybody should take that challenge in their lives as an opportunity to grow inside and outside, to become a better performer, to achieve their goals. That is a really good point. What is your learning कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लर्निंग हुई हो जिससे आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला है एंड वो आपके लाइक प्रोफेशनली आपको बहुत हेल्प मिली? Yes, I could say last year I met few people as curators, you know, they were very inspiring. The way they were putting their heart and soul into exhibitions, which really inspired me in a way that actually curators अपनी पूरी जान लगा देते हैं एक आर्ट को बेचने के लिए, because curators के पास वो सारे contacts होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स के, आर्किटेक्ट्स के, और उनके पास वो राइट गाइडेंस होती है. सो आर्टिस्ट को नहीं पता कि वो आर्ट बना रहा है उसका बिकेगा कि नहीं बिकेगा एक्चुअली, ठीक है. बट लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, आर्टिस्ट को सिर्फ आर्ट वर्क बनाना नहीं आना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस मार्केट के लिए बना रहा है, तब तो उनकी आर्ट बेटर वे में मतलब मार्केट में परफॉर्म करेगी, मतलब बेटर उनको रिजल्ट मिलेंगे. और मेरे लिए तो यही एक इंस्पिरेशन है कि अगर कोई काम भी मुझे अपने सीनियर से सीखने को मिला है, वो यही मिला है कि आप जिस काम में अपना हार्ट एंड सोल डालते हो ना, रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं.
Yes, actually, heart and soul जहाँ पर होगा, definitely you will get your dream and each and everything जो भी आप expect कर रहे हो वो आपको definitely मिलती ही मिलती है. So recently you awarded ना, like Yes, उसके बारे में yes. थोड़ा सा आप बताइए. So basically, it was my long journey for hard work in this art field. So I was very overwhelmed with this mompreneur award which I got in recently, just 2 days back, and that gave me a really good boost. It gave me a kick to work more harder and more kinder for the artists and my art field. Finally you got your result Yes. after a long More time. to come, more to come. This, I would say, this is just the beginning. हाँ. अच्छा अर्शलीन, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं आज की डेट में ना, हर एक पेरेंट ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियरिंग में जाए, है ना, डॉक्टर बने, मतलब एक प्रोफेशनल उसमें आए. बट अगर कहीं ना कहीं वो आर्ट कर रहा है, ड्राइंग अगर वो करता है तो उसके ऊपर इतना फोकस नहीं होता. तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी, आज जो भी बच्चा करे, आर्ट करे, फिजिकल एजुकेशन करे, मैं कहती हूँ वीडियोग्राफी करे, आज आज तो हर फील्ड की वैल्यू है, बट वो अपना अगर 100% डेडिकेशन देता है ना उस फील्ड में, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. बट डिपेंडिंग कि गाइडेंस वो कहाँ से ले रहा है और कैसे गाइडेंस है. आई डेफिनेटली नो कि पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं होती है, सो उसके लिए दे नीड टू हैव अ प्रॉपर कोचिंग एंड मेंटर Okay. to guide them from the day one, so that they reach up to the level. Because basically जो भी ये BFA MFA courses करते हैं वो जाके टीचर बन जाते हैं, because they think कि उनका तो ये वाला आर्ट ऐसे चलेगा नहीं. And it calls lot for artists. It's a real struggle to put lot of money into art and get acknowledged, and they never would think of putting exhibitions में so much money, because already MFA में इतने पैसे लग गए, BFA में पैसे लग गए, बहुत ज्यादा. तो फिर अब जब एग्जिबिट करेंगे उनको उसमें भी पैसा डालना Exactly, है. correct, ठीक है, तो फिर आई एम टेलिंग देम टू हैव अ राइट गाइडेंस. सो इन दैट केस आई एम गिविंग कोचिंग टू पीपल, सो हाउ टू यूज नॉट दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड गेट अ ग्रेट गाइडेंस. आर्ट फील्ड में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है एक्चुअली. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उस मेंटर को ही यहाँ पर लेकर आए हैं जो आज हमारे साथ बैठी हुई है, मिस अर्शलीन. सो अगर इफ यू फील लाइक कि आपका बच्चा है वो ड्राइंग में इंटरेस्ट ले रहा है, पेंटिंग्स अच्छी है या कुछ भी स्क्रम्बलिंग कर रहा है और स्केचिंग कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, तो अगर आपको डाउट है कि हमारा बच्चा आर्टिस्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अर्शलीन को. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किस तरह की गाइडेंस वगैरह आपको चाहिए या कौन सा वे है, किस वे में उनको जाना है, राइट. सो हाउ इज योर पर्सनल लाइफ? ये तो प्रोफेशनली हमने बहुत सारी बातें कर ली एंड यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर प्रोफेशनल लाइफ. व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? So I got married from last year, 20 years. Now I have a child. She's in abroad. She's doing a graduation in London. Oh my God! Yes, yes. She's But doing you are not looking biotechnology. like इतना बड़ा बच्चा है आपका. Thank you so much. Okay, so वो क्या कर रहे वो हैं? बायोटेक्नोलॉजी में है. She is taken science. She is having that mindset to become a researcher. So she is just an opposite of me, and but she likes to teach also sometimes. So अभी तो just उसकी she's just begin with this. There are some questions, few questions. Like अगर आप खुद एक कलर होती, so which would be you and why? I would say that I would be a pink color, because it represents femininity. It represents me. I like lotus pink color, so that's my favorite. Okay. It is peaceful and it is calm. All right. कलर्स के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, लाइक जैसे कि अभी येलो को आपने डिस्क्राइब करा है, सो कुछ कलर्स होते हैं जो मिक्स एंड मैच करके बनाए जाते हैं, लाइक ब्राइट कलर के बारे में सभी लोग बोलते हैं. व्हाट अबाउट द ग्रे कलर विच यू आर वियरिंग? So gray color represents space. So अगर किसी को वास्तु आता है, because I am into वास्तु also and I am into tarot also. Okay. So I relate paintings with all these tarot and वास्तु. So अगर हम ग्रे कलर की बात करें तो ग्रे represents space. जो हमारी स्पेस में एनर्जी है, लाइक सराउंडिंग्स में, तो इट इज ग्रे. सो इट गिव्स यू
a calmer, and of course it gives you an energy which will gives you a very submissive look. I mean submissive दिखती है. और yeah, that's it I want to say about this. All right. And as you told us कि आप वास्तु में भी इंटरेस्ट रखते हैं, बट एज पर ज्योतिष लोग रिकमेंड करते हैं वी शुड नॉट वियर द ब्लैक कलर, एंड व्हाट वुड यू से? It's very simple. Black color has very negative energies because it's a dark, dull color. So one should avoid wearing it. But people like to wear black because it goes with everything. So make sure that you're wearing combinations with black, and don't do your room at all that black color. Not even single wall. Okay. Always the house should be having white And or bright pastel peaches. These kind of colors. So that gives you soothing and calm energy. ओके. And paintings should be also, compromising, complementing with those walls. So अगर ब्लैक कलर, अगर सपोज इफ समवन लाइकिंग अ ब्लैक कलर और ब्लैक कलर का वॉल है, देन दे शुड यूज इनपुट द कलर पेंटिंग्स, तो जो बैलेंस इक्वल हो जाएगा, राइट? नहीं, आप ब्लैक को हटाई दो, मैं तो ये कहूँ ब्लैक को हटा दे. ब्लैक बहुत Okay. खतरनाक है. ब्लैक हाँ. शनि को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक राहु को रिप्रेजेंट करता है. ओके. So उसको हटाई देना चाहिए. सो पेंटिंग्स में यूज होता है, बिकॉज आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस. पेंटिंग्स में यूज होता है, बट हम लोग जनरली एक्रेलिक पेंटिंग में अगर देखें तो हम ब्राउन ज्यादा यूज करते हैं, मेहरून ज्यादा यूज करते हैं. वो हमारे को दिखता दूर से ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक डायरेक्ट कलर्स हम यूज नहीं करते हैं. ओके. एक पेंटिंग मैंने काफी टाइम से सुना है कि आपका जो एंट्रेंस होता है घर का, आई गेस, हाँ, एंट्रेंस पर जो रनिंग हॉर्स की पेंटिंग होती है वो लगाना चाहिए. लाइक हैव यू एनी आइडिया कि वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? It should not be in the entrance of the house. It should be in the office. Okay. So, and just right behind the person who is just running this office, like suppose अगर this place if I say, so if this is my workplace, so मेरे बिल्कुल पीछे होना चाहिए, क्लाइंट मेरे सामने होना चाहिए. रनिंग हॉर्सेस शो करता है विटालिटी को, विगरस को, काम को आगे बढ़ाने को, ये Okay. सब चीजें वो देता है. एंड स्टडी रूम में किस तरीके की पेंटिंग होनी चाहिए? स्टडी रूम में अगर तो वो एडल्ट का स्टडी रूम है तो वो काम एनर्जी को शो करना चाहिए. ठीक है, इसमें पीच पिंक कलर की कोई भी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप लगा सकते हो. और अगर किसी बच्चे की है तो उसको ही आप किसी कार्टून शेप में, मतलब पेंटिंग शुड बी इन अ कार्टून फॉर्म, एंड उसको कलरफुल बना सकते हो, सो दैट बच्चे का देख के दिल करे. चिल्ड्रन लाइक ऑलवेज कलरफुल थिंग्स. ओके. सो फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं देन यू शुड यूज द पेंटिंग इन अ कार्टून फॉर्म. तो बहुत सारे कलर्स होंगे, तो लाइक ब्राइट एंड लाइफ भी हो सकती है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं. बच्चे को कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो आपने अभी तक लाइफ में अपने हाथों के अलावा पेंटिंग कभी किया है? लाइक यूज कर रहे, आपने फीट यूज किया हो sometime? नहीं, I haven't used. Yes. You haven't used? No. All right. But जो लोग use I've करते been like using brushes, I've been using paint pencils, I've been using normal pencils, charcoal pencils and everything, but I have not used my, feet and all. Okay. So But I know there are artists who are actually very much into art. I've seen people doing it from their feet, from their mouth as well. जिसको right. करना है वो कोई भी तरीका निकाल लेता है. When there is a way, there is a will. Exactly. Right. Okay. So अश्विन, अगर सपोज इट कि आप एक साउंड ट्रैक होती, so what would be the 3 songs related to the painting? Well, that's Colours a and good all. question because I'm not into painting. I'm not into music at all. But painting से तो हम नहीं relate कर सकते. I can tell you my songs which I like. Okay. So anything which is super romantic goes with me, and anything which is very soothing and calming goes with me. Okay. These are 2 things I always listen. And वैसे मेरा जो मूड करता है मैं वो उस तरीके का गाना लगा लेती हूँ सुनने के लिए. And कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं when I go into the exhibition, तो मुझे
कुछ गाना भी याद दिलाती हैं, हाँ, बिकॉज एग्जैक्टली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यस, क्योंकि हम अगर जाते हैं, मैं आई कीप ऑन गोइंग टू एग्जीबिशंस, आई कीप ऑन एग्जिबिटिंग आर्टिस्ट वर्क, सो कुछ पेंटिंग्स ऐसे होती हैं कि कुछ आपको या तो कुछ सीन याद आता है उनको देख के, या कोई गाना याद आता है। तो अभी एज सच तो मेरे को नहीं सब आ रहा है ऐसे, क्योंकि आई एम नॉट अ सिंगर एट ऑल। All right. All right. So at the end, Ashleen, would you say something to our audience about the art and about your venture and all? So basically, if you are an artist or an upcoming artist or want to get established as an artist, so I would recommend to have a clear goal and have a good mentor to guide you throughout the journey of this art field, because without having right guidance in this field and without having clear goals, you will not be able to achieve the target market where you want to sell your art. सो अब ये तो हुई कोचिंग के बारे में बात। अब अगर हम किड्स की और एडल्ट्स की और या होमप्रेन्योर्स की बात करें जो सिर्फ आर्ट सीख के अपने घर में रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि एक अच्छी कोचिंग ले लें, जो कि आई ऑल्सो प्रोवाइड एंड देयर आर अदर टीचर्स एज वेल, बट उनके लिए उसमें उनका पहले इंटरेस्ट उनको देखना चाहिए उन लोगों को कि कौन से मीडियम में इंटरेस्ट है। सब कुछ नहीं करना चाहिए किसी को। जैसे एक्रिलिक में इंटरेस्ट है तो एक्रिलिक करो, स्केचिंग में इंटरेस्ट है तो स्केचिंग करो, बट अगर इंटरेस्ट है तो करो जरूर और उसको आगे तक सीखो, ताकि अगर आपने वो आर्ट अपने घर पे भी लगाई हुई है या किसी को अपने ऐसे गिफ्ट ही दी है तो वो अच्छी लगे, लोग देखकर भी बोले कि वाह क्या चीज है। Yes, absolutely, I meant the same. राइट। सो अश्लीन, थैंक यू सो मच। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें हमें आर्ट फॉर्म के बारे में भी पता चली हैं। एंड नाउ हमारा एक ट्रेंड है कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज की टॉपिक और हमारी गपशप आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि अश्लीन को भी न्यू ऑडियंस मिले एंड आप लोगों को भी एक अच्छा मेंटोर मिल पाए। ठीक है, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट हम लेकर आते रहेंगे और अच्छे इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे पास आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। Thank you.